شرح سود میں 2 سال بعد 100 بیسس پوائنٹس کا اضافہ، اسٹیٹ بینک نے شرح سود بڑھا کر 11.5% کر دی۔ نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ ترجمان کے مطابق تیل کی بڑھتی قیمتیں اور سپلائی چین معیشت پر اثر انداز ہوئی۔ معاشی ماہرین نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ شرح سود بڑھنے سے بینکوں سے قرض لینا مزید مہنگا ہو جائے گا۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 100 بیسس پوائنٹ کا اضافہ کر دیا۔ شرح سود 10.50% سے بڑھ کر 11.50% ہو گئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق گزشتہ ماہ مہنگائی کی شرح بڑھ کر 7.3% تک رہی۔ خدشہ ہے آنے والے مہینوں میں یہ 10% تک جا سکتی ہے۔ مرکزی بینک نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ شرح سود بڑھانے کا مقصد مہنگائی کی توقعات کو قابو میں رکھنا ہے۔ مرکزی بینک کے مطابق IMF کے ساتھ معاہدے اور 4 سال بعد عالمی مارکیٹ میں یورو بانڈز کے اجراء کی بدولت اسٹیٹ بینک کے ذخائر 15.8 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔ اندازہ ہے رواں سال جون تک زر مبادلہ کے ذخائر 18 ارب ڈالر سے تجاوز کر جائیں گے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں معاشی ترقی 3.8% رہی، تاہم گندم کی پیداوار کم ہونے کے خدشے کی وجہ سے سالانہ ہدف میں کچھ کمی آ سکتی ہے۔ مرکزی بینک کے مطابق FBR کے ٹیکس وصولی کے ہدف میں اب تک 611 ارب روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جو کہ ایک تشویشناک پہلو ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ شہری ہو جائیں ہوشیار، سورج آئے گا سوا نیزے پر۔ PDMA کا گرمی کی شدت میں اضافے بارے ہائی الرٹ جاری، مئی اور جون گرم ترین ہونے کا امکان۔ DG PDMA عمر جاوید کے مطابق مئی اور جون میں درجہ حرارت 43 سے 45 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔ حالیہ دنوں میں درجہ حرارت 2 سے 4 ڈگری معمول سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ عمر جاوید کا مزید کہنا ہے کہ 29 اپریل سے 3 مئی تک جنوبی علاقوں میں ہلکی ہیٹ ویو کا امکان ہے۔ مغربی ہواؤں کے 27 اپریل کی رات سے 29 اپریل تک بالائی علاقوں میں اثرات متوقع ہیں، جبکہ مغربی ہواؤں کے 3 سے 5 مئی تک بالائی علاقوں میں اثرات ظاہر ہوں گے۔ DG PDMA کا کہنا ہے کہ مغربی ہواؤں کے باعث بالائی علاقوں میں درجہ حرارت میں 2 سے 4 ڈگری کمی کا امکان۔ شدید گرمی کے باعث بچے، خواتین اور بزرگ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دھوپ میں غیر ضروری نکلنے سے گریز اور پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ موسمیات کا کہنا ہے کہ ہیٹ ویو کے باعث ملک کے بیشتر میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ شدید گرمی صحت کے مسائل میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے۔ شہر میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے مختلف علاقے تاریکی میں ڈوب گئے۔ لیسکو کے سسٹم پر بجلی کی طلب 4000 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی۔ NPCC سے فراہمی 3400 میگا واٹ ہونے لگی۔ سسٹم پر 600 میگا واٹ کا شارٹ فال ہونے پر لوڈ شیڈنگ ہونے لگی۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہد سپرا سے۔ جی شاہد سپرا، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، شہر میں ایک دفعہ پھر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ شروع کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے مختلف علاقے اس وقت تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ذرا نے بتایا ہے کہ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے سسٹم پر بجلی کی ڈیمانڈ 4000 میگا واٹ ہے، جبکہ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر سے فراہمی 3400 میگا واٹ تک محدود کی گئی ہے۔ اس میں 600 میگا واٹ کا شارٹ فال ہونے کی بنیاد پر لیسکو کے تقریباً 140 سے زائد فیڈرز کو بیک وقت بند کر کے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب پیک آورز میں وفاقی حکومت کے احکامات کی روشنی میں 2 گھنٹے کی اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا مجموعی طور پر دورانیہ تقریباً 3.5 گھنٹے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد سپرا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سولر سے بجلی کی پیداوار چوتھے گیئر میں۔ نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ کے تحت 2000 میگا واٹ بجلی کی پیداوار، ایک سال میں 2 ارب 90 کروڑ یونٹ بنائے گئے۔ سولر صارفین نے مجموعی طور پر 87 ارب کی پیداوار کی۔ سولر بجلی کی پیداوار سے حکومت کو 87 ارب کا فائدہ پہنچایا گیا۔ رجسٹرڈ 1,34,000 صارفین نے بجلی کی پیداوار کی۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی میں نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ کے تحت تقریباً 2000 میگا واٹ بجلی کی پیداوار ہونے لگی ہے۔ لیسکو میں 1987 میگا واٹ نیٹ میٹرنگ کیپیسٹی کی بنیاد پر کنیکشن لگائے گئے۔ اس طرح لیسکو کے صارفین نے ایک سال کے دوران 2 ارب 90 کروڑ یونٹس بنائے۔ دستاویزات کے مطابق سولر صارفین نے مجموعی طور پر 87 ارب روپے کی بجلی کی پیداوار کی۔ اس طرح سولر پینل سے صارفین نے بجلی بنا کر حکومت پاکستان کو 87 ارب روپے کا فائدہ پہنچایا۔ سولر سسٹم سے بجلی کی پیداوار نہ ہونے سے حکومت کو مہنگے داموں بجلی کی پیداوار کرنا تھی، اور مہنگے داموں بجلی کی پیداوار ہونے سے صارفین کے بلوں میں اضافہ ہونا تھا۔ آئندہ مالی سال 2026-27 کا بجٹ ایجوکیشن سیکٹر کے ترقیاتی بجٹ میں بڑا اضافہ تجویز۔ تعلیم کے لیے بجٹ 140 ارب سے 171 ارب کرنے کا پلان۔ رواں مالی سال کے مقابلے میں 25 ارب روپے زائد اضافہ۔ اسکول ایجوکیشن کا بجٹ 115 ارب تک لے جانے کی تجویز۔ ہائر ایجوکیشن کے فنڈز میں اضافہ۔ بجٹ 45 ارب روپے مقرر کرنے کا پلان۔
तजवीज़ के मुताबिक मजमूई बजट 146 अरब रुपए से बढ़ाकर 171 अरब रुपए करने का मंसूबा बनाया गया है, जो रवा माली साल के मुकाबले में 25 अरब रुपए से जायद यानी 17% से ज्यादा इजाफा मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक स्कूल एजुकेशन का बजट 115 अरब रुपए तक ले जाने की तजवीज़ है, जो बदस्तूर सबसे बड़ा हिस्सा होगा, जबकि हायर एजुकेशन के लिए 45 अरब रुपए, स्पेशल एजुकेशन के लिए 5.5 अरब रुपए और लिटरेसी और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस करने का प्लान है। हुकूमत की जानिब से तालीमी तरक्याती मंसूबों की रफ्तार तेज करने के लिए इजाफी फंड्स फराहम करने का फैसला किया गया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, नए मंसूबों का आगाज और जारी स्कीमों की तकमील पर खसूसी तवज्जो दी जाए। मॉल रोड की कदीम इमारतों की भी सुनी गई असल तारीखी हालत में बहाली का मंसूबा शुरू। PMG चौक से चेरिंग क्रॉस तक 104 इमारतों की निशानदही करके 10 मालिकान को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इमारतों की बहाली का खर्चा कौन उठाएगा और ये कब तक बहाल होंगी, तफसीलात इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की तकनीकी मावनत से बरतानवी दौर की इमारतों का हुसन बहाल होगा। इमारतों की बहाली मालिकान के खर्चे पर होगी और 7 दिन में काम शुरू न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। PMG चौक से चेरिंग क्रॉस तक कुल 104 इमारतों की निशानदही कर ली गई है। इब्तदाई तौर पर 10 कदीम इमारतों के मालिकान को नोटिस जारी किए गए हैं और नोटिस के साथ इमारतों की खस्ता और बुरे हालात की तस्वीर भी इरसाल की गई हैं। कदीम इमारतों के मालिकान को 7 दिन के अंदर बहाली का काम शुरू करने की हिदायत की गई है। मॉल रोड पर बरतानवी अहद की इमारतों की तारीखी हैसियत बहाल की जाएगी। इमारतों का बैरूनी फसाड यकसा और जाज़ब नजर बनाया जाएगा। तारीखी विरसे की बहाली में वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी जिले इंतजामिया को तकनीकी मावनत फराहम करेगी। बहाली के लिए जिन इमारतों के नाम भिजवाए गए हैं उनमें गुलाम रसूल बिल्डिंग, केशोराम, शादीन मंजिल, अहमद मेंशन, जमान प्लाजा, खादम सेंटर, जियाउद्दीन बिल्डिंग, कृपाराम बिल्डिंग, धोनी मेंशन, जान बिल्डिंग और दीगर शामिल हैं। मानसून से कबल सीवरेज मंसूबे मुकम्मल होंगे। 52 शहरों में सीवरेज की बहाली, तामीर का डिजाइन मुकम्मल, लागत 300 अरब रखी गई। पंजाब इंक्लूसिव सिटी प्रोग्राम का PC1 भी तैयार। मंसूबा 14 शहरों में शुरू होगा। सीवरेज की बहाली की जाएगी। वर्ल्ड बैंक $400 बिलियन कर्ज देगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट के PC1 में ताखीर। PND बोर्ड ने एतराज़ात के साथ PC1 वापस कर दिया। IDEP अथॉरिटी को लागत पर नजरसानी की हिदायत। मंसूबे की मजमूई लागत का तखमीना 54 अरब लगाया गया। ज़राए PND बोर्ड के मुताबिक एतराज़ात दूर होने के बाद तमाम PC1 मंजूर किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक IDEP अथॉरिटी को मंसूबे की मजमूई लागत, जो कि 54 अरब रुपए लगाई गई थी, पर नजर सानी की हिदायत जारी की गई हैं। मंसूबे में चिल्ड्रन अस्पताल 2, इन्फेक्शन डिजीजेज अस्पताल, रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट समेत जेनेटिक, बर्न, ENT और नर्सिंग इंस्टीट्यूट शामिल हैं। ताहम लागत पर तहफ़्फ़ुज़ात के बाइस ताहाल मंजूरी नहीं मिल सकी। ज़राए के मुताबिक हालिया सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी इजलास में भी लागत के मामलात पर सवालात उठाए गए और एतराज़ात दूर होने के बाद ही मंसूबे के तमाम PC1 की मंजूरी मुतवक्के है। लेडी विलिंगटन अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ की 244 असामियाँ खाली होने का इंकशाफ। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने खाली असामियों की तफसीलात पंजाब असम्बली में जमा कराई। रुकन असम्बली मोहम्मद हसन रियाज के सवाल पर महकमाना ने पंजाब असम्बली में जवाब जमा कराया। लेडी विलिंगटन अस्पताल लाहौर में डॉक्टर्स की मंजूर शुदा असामियाँ 194 हैं। अस्पताल में सिर्फ 29 डॉक्टर्स फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। 165 असामियाँ खाली हैं। लेडी विलिंगटन अस्पताल में नर्सिस की मंजूर शुदा असामियाँ 192 हैं। अस्पताल में 166 नर्सिस फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। नौमौलूद बच्चों की जिंदगियां दांव पर लग गई। महकमा सेहत को 2.5 साल बाद ख्याल आ गया। ठेकेदारी सिस्टम से हिफाजती टीके लगाने का अमल शदीद मुतासिर। 2.5 बरस बाद प्रोग्राम के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती शुरू कर दी। पंजाब भर में 879 असामियों पर भर्ती होगी। ब्यूरोक्रेसी के ठेकेदारी सिस्टम के तजुर्बात नाकाम हो गए। बुनियादी और दही मराकज़ सेहत और माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम ठेके पर देने से बच्चों को हिफाजती टीके लगाने का प्रोग्राम बुरी तरह मुतासर हुआ है। ठेकेदारी निज़ाम फेल होने पर 2.5 बरस बाद हिफाजती टीकों के प्रोग्राम के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती का अमल शुरू कर दिया गया है। वैक्सीनेटर्स के 9 की कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती के लिए दरखास्तें तलब कर ली गई है। वैक्सीनेटर्स की भर्ती के लिए 20 मई तक दरखास्तें तलब कर ली गई है। पंजाब भर में जूनियर टेक्नीशियन और वैक्सीनेटर की 879 असामियों पर भर्ती होगी। लाहौर में वैक्सीनेटर्स की 38 सीटों पर भर्ती की जाएगी। महकमा सेहत और आबादी की जानिब से ऐलान किया गया है कि दरखास्त गुजारों की तादाद के मुताबिक सीटें बढ़ाई भी जा सकती हैं। जिला अस्पताल में कार्डियक सर्जरी के लिए पैसे लेने का इल्जाम। बाईपास ऑपरेशन के लिए मरीजों से 2 लाख तक वसूल किए जाते रहे। शोबा कार्डियक सर्जरी के सरबराह को हटा दिया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियक सर्जरी डॉक्टर राफी गिरानी को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ रिपोर्ट करने की हिदायत।
जिला अस्पताल में कार्डिक सर्जरी के लिए मरीजों से पैसे लेने का संगीन इल्जाम सामने आया है। दिल के बाईपास ऑपरेशन के लिए मरीजों से 2 लाख तक वसूल किए जाने की शिकायत सामने आई। दिल के मरीजों को इंतजार के बजाय जल्द कार्डिक सर्जरी के लिए भी पैसे देने पर मजबूर किया जाता रहा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने शोबा कार्डिक सर्जरी जिला अस्पताल के सरबराह को हटा दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डिक सर्जरी डॉक्टर राफे गिलानी को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। जिला अस्पताल इंतजामिया की जानिब से पैसे लेने के मामले की मजीद तहकीकात जारी हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, वज़ीर आला के शुरू किए गए फलाही मनसूबों का जायजा लिया गया। इजलास को बताया गया कि मुख्तसर मुद्दत में राशन कार्ड, हिम्मत कार्ड और माइनॉरिटी कार्ड से 16 लाख से ज़ायद लोग मुस्तफीद हो चुके हैं। इजलास में सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल सारा उमर ने तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट के तहत जारी प्रोग्राम्स का जायजा लिया गया। इजलास में मरियम नवाज को बताया प्रोग्राम के जरिए मजीद 50,000 अफराद राशन कार्ड में शामिल करने का फैसला किया गया। वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब की ज़राअत और मईशत के लिए अपना खेत अपना रोज़गार बेज़मीन हारियों के लिए गेम चेंजर मंसूबा है। स्कीम के तहत पंजाब में बेज़मीन लोगों को ज़मीन 10 साल लीज़ पर दी जाएगी, जिससे 88,000 ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। पंजाब असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उस्मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला की जानिब से आवाम को रोज़गार के मौक़े फराहम करने के लिए मुतादिद मंसूबे शुरू किए गए। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ जो हमारी धीरानी प्रोग्राम है, जो हमारे मुख्तलिफ इनिशिएटिव चीफ मिनिस्टर साहिबा के हैं वो हों। आज जो एक बड़ी अहम बात जिसके लिए मैंने आपको आज तकलीफ दी है वो ये है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अपना खेत अपना रोजगार एक प्रोग्राम जो है उसका आगाज किया है और इस प्रोग्राम के कुछ खदोखाल मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये जो सरकारी जमीन है, जो सरकारी अराजी जो बंजर पड़ी रहती थी, जो वीरान पड़ी रहती थी, लेकिन कभी किसी हुक्मरान को ये ख्याल नहीं आया था कि ये ज़मीन के मालिक पंजाब के अवाम हैं और ये ज़मीनें बसाने का और इन ज़मीनों को आबाद करने का जो एक मौका है वो इन बेरोज़गार लोग जो हैं वो उनको मिलना चाहिए। वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी का कहना है कि लाहौर रेलवे स्टेशन को सेफ एंड स्मार्ट रेलवे स्टेशन बनाने जा रहे हैं। 70 दिनों में बहुत कुछ करने का प्लान तैयार किया है। रेलवे के मार्केटिंग शोबे को डिजिटलाइज कर रहे हैं। ट्रेनों में कैमरा लगाने का भी मंसूबा है। ऑटो रेल ट्रांसपोर्ट का काम शुरू करने जा रहे हैं। सकती है उनका जो विजन है, उनकी जो अथॉरिटी है, जिस तरह वो उसको इम्प्लीमेंट करती हैं वो आपके सामने है। उस पर कोई बंदा जो है वो हायल नहीं हो सकता। इसके अलावा जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हमें टास्क दिए वो मैं जिक्र आपसे करता जाऊंगा। टास्क ये था कि पूरे के पूरे पाकिस्तान रेलवे को डिजिटाइज कर दिया जाए और डिजिटाइजेशन के ऊपर एफडब्ल्यूओ का बड़ा अहम रोल है। इनके साथ हमने एक जो एग्रीमेंट है वो साइन किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उसकी सूरत में आज आपने कंट्रोल रूम का जो है, मैं माजरत के साथ यहाँ गाड़ी डीरेल होती थी, आप यकीन मानेंगे मिनिस्टर को पहले पता होता था, मैं अफसर को फ़ोन करके पूछता था गाड़ी डीरेल हो गई है, तो वो कहता अच्छा मैं पता करके दसना। मेरे तक आप लोगों के ज़रिए खबर पहले पहुंच जाती। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारा आपने कंट्रोल रूम देखा है, ये मुझे बताइएगा, बड़े बड़े यहाँ ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको विज़िट कर लें और फिर इस आके कंट्रोल रूम को देखें। और फिर इसके साथ साथ सिर्फ ये एक कंट्रोल रूम नहीं होगा, इसके छोटे छोटे भाई और भी हैं साथ, उनको इसी तरह के उन 7 डिवीजन्स के अंदर भी ये कंट्रोल रूम बनने जा रहे हैं और ये हम बनाने 30 जून से पहले ये मुकम्मल हो जाएंगे। आइंदा माली साल के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी। लाहौर समेत पंजाब में अवामी सहूलियात के नए मंसूबों को ग्रीन सिग्नल। LDA वासा समेत 12 अहम तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी गई। पंजाब में आइंदा माली साल के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी के हवाले से सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें महकमाना अमूर और मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का तफसीली जायजा लिया गया। डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट सब कमेटी के इजलास में मजमूई तौर पर 12 अहम तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई। इन मंसूबों का मकसद सूबे भर में शहरी सहूलियात को बेहतर बनाना और बुनियादी ढांचे को मजीद मजबूत करना है। इजलास में लाहौर, फैसलाबाद, जेहला और मरी के लिए मुतादिद तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई। वासा लाहौर के गंजबख्श जोन में 2 नए डिस्पोजल स्टेशन की तामीर की भी मंजूरी दी गई।
कार्डिक सर्जरी प्रोग्राम के हवाले से इजलास सदारत वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक ने की। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ अजमत महमूद की इजलास में शिरकत, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क सर्विस डिलीवरी के लिए इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला एडलेट कार्डिक सर्जरी प्रोग्राम के हवाले से इजलास की सदारत वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक ने की। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ अजमत महमूद समेत मुतल्लिका हुकाम शरीक हुए। ख्वाजा सलमान रफीक ने सेहत के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में शफाफियत को यकीनी बनाने, सर्विस का मयार बेहतर बनाने और मरीजों की आसानी के लिए जामे मॉनिटरिंग को यकीनी बनाने पर जोर दिया। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि उम्मे पैनल अस्पतालों से अब तक तमाम खुसूसी प्रोग्राम्स के तहत मरीजों को अरबों रुपए से मुफ्त इलाज मुआवजा दिया गया। दूसरी जानिब श्रीलंका के एजाजी कौंसल जनरल यासीन जोया की सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन से मुलाकात। पंजाब और श्रीलंका के माबैन तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर बातचीत। सूबाई वजीर ने कहा कि पंजाब के बाज़ इलाकों में चाय की फसल की काश्त में श्रीलंका की टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करेंगे। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से श्रीलंका के एजाजी कौंसल जनरल यासीन जोया ने मुलाकात की, जिसमें पंजाब और श्रीलंका के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन के इम्कानात का जायज़ा लिया गया और बाहमी इश्तराक को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। सूबाई वज़ीर ने कहा कि ज़राअत, तालीम, सेहत, साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ दिया जा सकता है, जबकि श्रीलंका की चाय की काश्त में महारत से इस्तेफादा करते हुए पंजाब के बाज़ इलाकों में इस फसल की काश्त का जायज़ा लिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने न्यास पे कटारबंद रोड और मोटरवे लिंक का तफसीली दौरा किया। डीसी ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी स्कीमों और अवामी फलाही मनसूबों का जायजा लिया। डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर अलामा इकबाल, चीफ ऑफिसर MCL और वासा LWMC के आला हुकाम ने फील्ड मॉनिटरिंग में हिस्सा लिया, जहाँ उन्हें तमीराती मयार और सफाई के इंतजाम पर जामे ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने LDP के तहत जारी मंसूबों में अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त हिफाजती प्रोटोकॉल्स और तामीरात के आलमी मयार को हर सूरत बरकरार रखने की हिदायत की। IG पंजाब अब्दुल करीम की पुलिस मुलाज़मीन और उनके अहल खाना से मुलाकात का सिलसिला जारी। IG पंजाब ने पुलिस मुलाज़मीन फैमिलीज़ के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी किए। माली अब्दुल कय्यूम और रिटायर्ड कांस्टेबल रियास हुसैन की तिबी माली इमदाद की दरख्वास्तों पर DIG वेलफेयर एंड फाइनेंस को हिदायत जारी की। कांस्टेबल ताहिर मुबारक और जूनियर क्लर्क जुबैर हमजा की ट्रांसफर्स की दरख्वास्त से एडिशनल IG को ज़ेरे गौर लाने की हिदायत की। ड्राइवर कांस्टेबल हमीद अहमद और रिटायर्ड कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल की बेटों की भर्ती की दरख्वास्तों पर एडिशनल IG को रिलीफ की हिदायत की। IG ने डिसिप्लिन, एडमिन, प्रमोशन, वेलफेयर से मुतल्लिका दीगर दरख्वास्तों पर भी अहकाम जारी किए। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी की सर्कल अफसरान और सेक्टर इंचार्जेस से मीटिंग। CTO लाहौर ने शहर की मॉडल रोड्स का दौरा भी किया। CTO लाहौर ने सर्कल अफसरान और सेक्टर इंचार्जेस से मुलाकात की और रोड डिसिप्लिन को यकीनी बनाने की हिदायत की। CTO का कहना था कि ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों पर किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। लोगों को हादसा से महफूज रखना और उनके सफ़र को महफूज बनाना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सैयद अब्दुल रहीम शराजी ने मॉल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड और केनाल रोड का दौरा किया। सर्कुलर अफसरान और सेक्टर इंचार्जेस ने CTO को इन्फोर्समेंट के बारे ब्रीफिंग दी। CTO का कहना था कि लैंड लाइन डिसिप्लिन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए और वन वे की खिलाफ वर्जी, ज़िगज़ैग ड्राइविंग और सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर किसी किस्म की छूट ना दी जाए। टेप बॉल क्रिकेट लीग के सबसे बड़े एडिशन की तैयारियां। MPL लीग के 8वें एडिशन के लिए खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग मुकम्मल। मेगा इवेंट की चमचमाती ट्रॉफी और ऑफिशियल किट की भी रोडमाई कर दी गई। ये इवेंट हॉल में मुनक्कद ड्राफ्टिंग की तकरीब में मुल्क भर से नामवर टेप बॉल खिलाड़ियों और टीम मालकान ने शिरकत की। इस मौके पर मिलीनियर प्रीमियर लीग के चेयरमैन फरहाद इकबाल ने जिशान भट्ट, राना उमर और फजल जब्बार के साथ मिलकर टूर्नामेंट की ट्रॉफी और किट की रोनुमाई की। चेयरमैन MPL फरहाद इकबाल का कहना था कि पाकिस्तान के तमाम टेप बॉल के स्टार खिलाड़ी और इस लीग का हिस्सा हैं। हारिस रऊफ, सलमान मिर्जा, जाहिद, हमजा और जालत खान MPL का हिस्सा रह चुके हैं। खिलाड़ियों के साथ साथ फैंस के लिए भी इनामात रखे गए हैं। पहले हम लोग ज्यादा टीम्स लेते थे, अभी हमने इसको लीग सिस्टम पे कन्वर्ट कर दिया है। ड्राफ्टिंग सेरेमनी आपके सामने है और 6 नाइट्स का इवेंट है। मेन चीज़, नई चीज़ यही है कि हमारा जो MPL है ना, वो इसलिए ये पॉपुलर है, फेमस है कि हम लोग तरह तरह की आप कह लें कि अनाउंसमेंट करते हैं। तो ये इस दफ़ा जितनी हमारी टोटल अमाउंट है ना, उतनी अनाउंसमेंट मैंने एक बॉल पे भी करनी है।
تو یہ آپ حساب لگا لیں، اس کا مطلب ہے کہ ایک ایک بال پہ ہم شاید 20 لاکھ روپے تک بھی اناؤنسمنٹ کریں، تو یہ اس دفعہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہوگی۔ کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ٹیپ بال لیگ کے پروفیشنل کھلاڑی اچھے پیسے کما لیتے ہیں، لیگ سے نیا ٹیلنٹ بھی سامنے آئے گا۔ ماشاءاللہ پاکستان میں ٹیپ بال کے ایونٹس اور بھی ہوتے ہیں، لیکن MPL کا ایک الگ لیول ہے۔ جتنے پروفیشنل پلیئر ہیں ماشاءاللہ سارے صحیح اسٹیبل ہوئے، ٹیپ بال کی وجہ سے انکم صحیح آتا ہے، تو وہ پلیئر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جتنا آپ پرفارمنس کرتے ہو۔ ابھی تو ٹیپ بال کا نئے کھلاڑی سامنے ہیں، پہلے جو 7 ایڈیشن ہوئے ہیں بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے یہ MPL نے کرکٹ کو، اسپورٹس کے پلیٹ فارم پہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، اور بہت زیادہ جو نئے پلیئر ہیں وہ بھی سامنے ہیں۔ ابھی جو ایڈیشن انہوں نے 8واں کروا رہے ہیں، یہ بڑا اچھا انہوں نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا ہے۔ ہر لیگ میں ہمارا مائنڈ سیٹ پلیئرز کو دیکھنے کا یہی ہوتا ہے کہ کون سا پلیئر کس لیول پہ پرفارم کر رہا ہے، اور ہماری جو مین جو ٹیم ہوتی ہے، جو R&D ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، جو ریسرچ کر رہا ہوتا ہے، اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ پلیئرز کو ہر لیگ کے اندر دیکھیں گے کون کس لیول پہ پرفارم کر رہا ہے۔ ٹورنامنٹ میں 10 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ فاتح ٹیم کو ٹرافی کے ساتھ 20 لاکھ اور رنر اپ کو 10 لاکھ روپے ٹرافی دی جائے گی، جبکہ شائقین کے لیے بھی لاکھوں روپے کے انعامات رکھے گئے ہیں۔ ملینئر پریمیئر لیگ کے 8ویں ایڈیشن کے مقابلے 5 سے 10 مئی تک غنی انسٹی ٹیوٹ اسٹیڈیم DHA میں ہوں گے۔